Assalamu alaikum. Good morning, students. Today we shall start chapter number 3 of geography. This is about oceans and seas. In this chapter you will learn about the characteristics of oceans and seas and also about different features of sea, gulf, bay, bight, channel, strait, etc. You can also learn about the ocean floor and also the nature and causes of the various oceanic movements, and you can also be able to identify, differentiate between waves, currents and tides. Okay, let's start the lesson. Open your books at page number 22. Oceans and seas. As all of you know that the largest body of water on the surface of earth is called ocean, and the smallest or an adjunct or smaller body of water is called sea. Let's read from the book. The largest body of water on the surface of earth is called ocean, and an adjunct smaller body of water is called sea. There are 5 oceans in the world. Maybe you have read the names of these oceans. These are Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic and Arctic oceans. Okay, there are 5 oceans in the world. You can see in this picture also, you can get these. The one is Pacific Ocean, then Atlantic Ocean, Arctic Ocean, it is Antarctic Ocean and Indian Ocean. Okay, let's start from Pacific Ocean. It is the largest ocean of the world. Its area is 168 million square kilometer. It has an average depth of 4,000 meters. Its marginal areas comprises of deep trenches and volcanoes. Panama Canal with links Pacific Ocean with the Atlantic Ocean is among the important trade routes of the world. जो हमारी ज़मीन है इस पे लार्जेस्ट बॉडी, जो वाटर की लार्जेस्ट बॉडी होती है उसे हम ओशन कहते हैं, मतलब जो बड़ा किता होता है उसको बहर कहते हैं. एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ कॉल्ड सी. जो छोटा किता होता है उसको हम बहीरा या सी कहते हैं. तो कितने हमारे 5 ओशंस हैं वर्ल्ड में जो एक बर आज़म को दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं. ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है दैट इज़ कॉल्ड बहरुल काहिल. ठीक है, अब ये सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट जो ओशन है वो यही है. ठीक है, पैसिफिक ओशन है और इसका एरिया 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है और इसकी जो डेप्थ होती है, मतलब गहराई जिसको हम कह सकते हैं, वो 4,000 मीटर है. ठीक है, और ये जो एरिया होता है ये गहरी खाइयाँ होती हैं, ट्रेंचेस होती हैं, वॉल्केनोज होती हैं, उन पे ये मुश्तमिल होता है. और जो नहर पनामा है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस ओशन, मतलब ये लिंक करती है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से. ठीक है, जो पैसिफिक और अटलांटिक बहरुल काहिल को बहरे ओकेनूस से मिलाती है और इसमें डिफरेंट जो स्पेशल ट्रेड रूट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ अटलांटिक ओशन. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. इट्स एरिया इज़ 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड it has an average depth of 3,900 meters. Mid-oceanic ridge, which is the result of this ocean, this oceanic ridge spreads across the Atlantic, Indian, Pacific and Antarctic oceans. It includes in the active earthquake areas of the world. It is also the world's most important and busiest trade route. Okay, सो जो अटलांटिक ओशन है ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है. इसे हम बहरे ओकेनूस भी कहते हैं और इसका जो एरिया है इट इज़ अबाउट 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं. और इसकी जो अबाउट एवरेज जो इसकी डेप्थ है वो 3,900 मीटर्स है. ठीक है, एंड देन इसकी जो स्पेशल चीज़ हम कह सकते हैं कि इसके जो मिड में एक माउंटेनियस रेंज जो है वो
इस तरह से है कि मिड में ओशनिक रिजेस हैं जो किस तरह से होती हैं कि विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इरप्शन ऑफ मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री is the significant feature of this ocean. This oceanic ridge spreads across the Atlantic, Indian, Pacific and Antarctic oceans. तो जो मतलब प्लेट्स होती हैं वो अपनी जो अपोजिट साइड से आ रही होती हैं और उनके टच होने से या उनकी मूवमेंट की वजह से जो मैग्मा या जो वॉल्केनिक मूवमेंट होती है वो मैग्मा इरप्शन होती है वो निकलता है, तो वो एक बहुत बड़ा किस्म का जो है वो एक माउंटेनियस रिज बनती है जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और उसके बाद इंडियन ओशन और जितना भी मतलब अंटार्कटिक ओशन है उन तक ये स्ट्रेच हुआ हुआ है। और इस तरह से जो डिफरेंट किस्म की वर्ल्ड में जो एरियाज़ हैं वो भी आती हैं और जो हमारी कह सकते हैं कि ओशनिक ट्रेड है वो इन्हीं रास्तों के थ्रू होती है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन।